Hello everyone. Today we'll be talking about Coulomb's law. We have already discussed about charge and its properties and some problems based on charges. Um, it's a very important part of electrostatics, that is Coulomb's law. Charles Augustin Coulomb, he was a French physicist who discovered Coulomb's law after his retirement from the French army. It was discovered around in 18th century, I think. And yeah, so what exactly Coulomb's law is and how useful it is for the study of electrostatics, we'll further discuss. So Coulomb's law basically talks about a pair of charges. Here the charges has been shown like quite big, but normally the Coulomb's law talks about a set of point charges which are separated by some distance, let's say r, and these charges can be anything irrespective of their signs, like whether they are positive or negative. So we know that जो similar charges होते हैं, they repel each other and the opposite charges attract each other. But what exactly is the magnitude of that force? मतलब कितना strongly attract करते हैं और कितना strongly उसको repel करते हैं. So we need to quantify that thing. We need to quantify the force, because if we can't quantify it, we can't use it or we can't calculate it properly. So basically Coulomb's law is nothing but a method to quantify the force between two charges, between a pair of charges. Now, what exactly is the force? So he told that, means Charles Augustin Coulomb, he explained that force between two charges is nothing but proportional to the product of the charges Q1 and Q2, irrespective of the signs. That means whatever the magnitude is, it can be 2 into 3, it can be 2 and minus 3, it can be minus 3 and 2, or like minus 2 and 3. Irrespective of their signs, the magnitude of the force is proportional to the magnitude of the charges, that is Q1, Q2, directly proportional, and inversely proportional to the distance, square of distance between these two charges. This is somewhat similar to you have talked about gravitational forces in gravitation in grade 11. That is, force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of separation. The only difference is कि वहाँ negative masses mention नहीं किए जाते थे. There was nothing like minus m1 or like minus 1 किलो कुछ नहीं होता. It's like always positive. So वहाँ कोई tension नहीं थी इस चीज़ की. यहाँ क्या होता है? That is proportional to Q1 and Q2, but we are talking about the magnitude, and inversely proportional to the square of distance. So effectively we get it like F is proportional to Q1 Q2 over R square. And to remove the proportionality, we involve a constant which we will be denoting with somewhat like K, Q1 Q2 over R square. But I personally prefer not to represent this K with this constant with K, because K we will be using like many other places. K is a general notation for dielectric constant and other things as well. So what exactly this K is? This K is what we call 1 over 4 pi epsilon naught. You can see over there that K is equals to 1 over 4 pi epsilon naught. अब ये है क्या? So it's like all other constants, ये भी एक नया constant है, but यहाँ पे एक term है epsilon naught. This is very interesting and this is very important. The term epsilon naught here represents permittivity of free space or absolute permittivity of free space, और इसी को कहा जाता है absolute permittivity. Permittivity of free space का मतलब क्या है? Free space means vacuum we are talking about, and permittivity, you know the word permission, right? Permittivity, that means resistance, opposition in permission. That means दो charges जब आपस में एक दूसरे से interact कर रहे हैं, ये charge और ये charge जब आपस में एक दूसरे से interact कर रहे हैं, so इनके बीच में जो interaction होगा वो उस medium पे depend करेगा जिस medium में ये charges रखे हुए हैं, और वो मीडियम उसको कितना अलाउ करेगा वो टर्म एप्सिलॉन बताता है. दैट इज, जब मैं वैक्यूम की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू कुछ है, जब कोई और मीडियम होगा तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी. सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट मीन्स एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा. इट इज़ ऑपोजिट. रिमेंबर, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा. मतलब मीडियम उसको उतना अलाउ नहीं करेगा इंटरेक्ट करने के लिए. यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट. Say for example, two objects are there and they are interacting with some force. वो उन दोनों के बीच में आपस में कुछ फोर्स लग रहा है. वो फोर्स ऐसे ही नहीं लगता. उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है. अगर हायर फिजिक्स में जाए तो उनके बीच में एक्चुअल में एक मैसेज ट्रांसफर होता है. When you place a charge or when you place a mass and you place another mass, then one mass or both of those masses send waves और मैसेज सिग्नल्स. ये दोनों मैसेज सिग्नल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है अच्छा ठीक है फोर्स लगाना है.
नॉर्मल सी बात है कि दो लोग अगर मान लो आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं तो फिर उन्हें उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है ना, यस ठीक है, आई हैव टू पुश दिस पर्सन एंड आई हैव टू पुश दिस पर्टिकुलर पर्सन, और आई हैव टू गो अवे फ्रॉम द पर्सन, और आई हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन. द थिंग इज दैट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो देयर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, और उनके बीच में एक सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है विच वी नॉर्मली कॉल दैट लाइक कि वो जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वो सिग्नल ट्रांसफर उनके बीच में एक इंट्रैक्शन है. अब वो सिग्नल ट्रांसफर कितने अच्छे से हो सकता है वो मीडियम डिसाइड करता है, जिस मीडियम में वो रखे हुए हैं. नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो उस इंट्रैक्शन के लिए आप मान लो कि अभी लॉकडाउन है तो फिर 2 डिफरेंट लोकेशन पे यूज सेल फोन. अब ये कितना अच्छा कनेक्शन है इस चीज़ पे डिपेंड करता है, आप जियो यूज़ कर रहे हो, वोडाफोन यूज़ कर रहे हो, एयरटेल यूज़ कर रहे हो, आइडिया यूज़ कर रहे हो. सो द पॉइंट इज विच टेलीफोन प्रोवाइडर, विच कम्युनिकेशन प्रोवाइडर यूर यूजिंग, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, दैट मैटर्स कि उस सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी दे रहा है. तो इन द सेम वे जिस मीडियम में वो चार्जेस रखे हुए हैं वो मीडियम ये डिसाइड करेगा कि उनके बीच में इंट्रैक्शन कितना ज़्यादा या कितना कम हो सकता है. सो जब मैं एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ तो आई स्पेसिफिकली मीन्स वैक्यूम और एयर. वैक्यूम और एयर के लिए थोड़ा सा ही फर्क होता है, तो वी ट्रीट देम एज लाइक ऑलमोस्ट इक्वल. सो इसकी वैल्यू होती है 8.854 होता है वैसे, बट इन्होंने 899 लिखा हुआ है. सो इट्स लाइक 8.8 into 10⁵ into 10⁹ 9 Newton meter square per coulomb square. This is the value of epsilon naught or permittivity of free space. This is the value 8.854 into 10⁹ Newton meter square per coulomb. No. 9 into 10⁹ Newton meter square per coulomb square. Sorry, 8.854 into 10⁻⁻12 Newton meter square per coulomb square. My mistake. 10⁻⁻12 meter per square per Newton meter square per coulomb square. But most of the time हमें इस वैल्यू से इतना मतलब होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स के एक्सप्रेशन में दैट इज k. इट इज नॉट एग्जैक्टली एप्सिलॉन नॉट, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो जब मुझे बार बार यही यूज करना है तो व्हाई नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस होल, बिकॉज पाई की वैल्यू मुझे पता ही है 4 है ही, एप्सिलॉन नॉट. तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 8.99 को 9 लिखा है, 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और यहाँ पे जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर, बिकॉज द थिंग इज दैट वो ऑपोजिट में है. और यहाँ पे भी आपको ये यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो कि अगर मान लो मैं लिखता हूँ फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 by r स्क्वायर. सो जो k की वैल्यू होगी वो होगी k इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2. तो अगर आपको k की यूनिट निकालनी है तो फोर्स के लिए न्यूटन, r स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 चार्जेस हैं तो कूलम -2. ये k की यूनिट हो गई. अगर आपको एप्सिलॉन नॉट के लिए निकालना है तो वो उसके 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट में है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा -1 -2 और +2. दैट इज द केस. Newton inverse meter -2 coulomb square. So what is the definition basically Coulomb's law? It states that the force between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. इन दोनों के बीच में जो distance है उसके square के inversely proportional होगा. This is what we call Coulomb's law. But ये medium dependent होता है. Take care of that. It is very very important factor. ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, इसीलिए हम g को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज वैलिड थ्रू आउट द यूनिवर्स. ओके या नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर मीडियम आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा. तो अभी जैसे मैं फोर्स लिख रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 over r square. This is the force when I'm talking about like two charges are in the air. Let's mark it as f naught, that is in the air. अगर मुझे यही फोर्स मीडियम में लिखना होगा तो फर्क बस इतना पड़ेगा कि सब कुछ सेम रहेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू यानी मीडियम जो उसे इंटरैक्ट करने के लिए अमाउंट दे रहा है या चांसेस दे रहा है वो चेंज हो जाएंगे. सो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m हो जाएगा. एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन m 1/4 बाय एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, मतलब फर्क पड़ेगा. तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम एक नई टर्म लेके आते हैं मीडियम के लिए, विच वी कॉल एज रिलेटिव परमिटिविटी. Relative permittivity or we also call it as dielectric constant. Now ये जो dielectric constant है, relative permittivity और dielectric constant, ये हम मीडियम के लिए डिफाइन करते हैं रेशियो के फॉर्म में. रेशियो के फॉर्म में समझना हमेशा थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है. फॉर एग्जांपल जैसे दो दोस्त हैं, से फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड्स आर देयर और दोनों के घर का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर लोकेशन से कुछ डिस्टेंस दूर है. तो एक के घर का लोकेशन 4 किलोमीटर है, दूसरे के घर का लोकेशन कुछ से इमेजिन लाइक 1 किलोमीटर है. तो नॉर्मली कहा जाता है कि फर्स्ट वाले के घर का डिस्टेंस
सेकंड वाले के घर के डिस्टेंस से 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, इट मेक्स मी अंडरस्टैंड थिंग्स मोर अप्रोप्रिएटली, और लाइक ये मेरे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है सिंपली सेइंग दैट कि अच्छा ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल एक बैट की जो लेंथ होती है नॉर्मल, जो क्रिकेट बैट होता है, क्रिकेट बैट की लेंथ इसके कम से कम 10 गुना होगी, कि अगर मैं इसको 10 टाइम्स ऐसे फोल्ड करूंगा तो जाके एक क्रिकेट बैट के बराबर की लेंथ बनेगी। तो उससे एक बेसिक आइडिया मिलता है, दैट इज वाई हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करना है किसी का, तो होता है मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। वैक्यूम को हम एक एब्सोल्यूट लेके चलते हैं, तो उस एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, दैट इज एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन r से भी डिनोट करते हैं और k से भी डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग आई अवॉइड यूजिंग k से भी डिनोट किया जाता है। अच्छा हाँ, ये जो बार बार यूज किया जा रहा है, ये एक ग्रीक लेटर है जिसे एप्सिलॉन कहा जाता है, ये परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जब एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं तो हम कहते हैं वैक्यूम, जब m लिखते हैं तो इसका मतलब हम किसी मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन r लिख रहे हैं मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये है रेशियो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। सो इफेक्टिवली अगर मैं अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करूं तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक कि मेरे पास एक सिचुएशन ये थी कि फोर्स इन एयर ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर, और फोर्स इन मीडियम बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 ओवर r स्क्वायर। Just now I studied that epsilon r or k, which is the dielectric constant, is nothing but epsilon m upon epsilon naught. So can't I replace this epsilon m with this, or epsilon m will come out to be epsilon r times epsilon naught. If I place this value somewhere here, I'm going to get f medium is equals to 1/4 pi epsilon naught into epsilon r into q1 q2 ओवर r स्क्वायर। कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन m की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r रख दिया। ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म इज नथिंग बट f medium is equals to, this is nothing but f air or f naught divided by epsilon r. So can I say that कि मीडियम में जो फोर्स है वो एयर के फोर्स से k टाइम्स छोटा होगा, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स छोटा होगा। तो से फॉर एग्जांपल किसी मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, एयर में 2 चार्जेस रखे हुए थे जिनके बीच में फोर्स 10 न्यूटन था, 10 न्यूटन था, उसको उठा के अगर उस मीडियम में रख दिया जाए तो उस मीडियम में उनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी 10/4, यानी एयर में जो फोर्स है या वैक्यूम में जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, डिवाइडेड बाय जैसे ही k करेंगे तो फिर हम उस मीडियम के फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ से आप k यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, दैट नथिंग बट इट इज रेशियो बिटवीन f एयर और f एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय f मीडियम। सो दिस इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर केस, उल्टा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ऑल्सो अ केस, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी ही। सो यहाँ से आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस बनेंगी, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दो चार्जेस हैं, इमेजिन लाइक q1 q2। रिमेंबर यहाँ पे चार्जेस ये बड़े दिखाए गए हैं, डजंट मीन कि ये बड़े हैं, वी आर कंसिडरिंग इट एज पॉइंट चार्जेस। इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है f और ये इस टाइम अभी वैक्यूम में है। द मोमेंट ये एक मीडियम में शिफ्ट हुए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इमेजिन लाइक k है, सो फिर इसमें जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, अगर सेम चार्जेस हैं सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा f अपॉन k। इट वॉन्ट बी, इट विल नो लॉन्गर बी f। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेहतर समझ आएगा। इमेजिन लाइक 2 चार्जेस हैं, चार्जेस के बारे में नहीं बताया क्या है, 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा था f जब वो एक सर्टेन डिस्टेंस d से सेपरेटेड थे। 2 चार्जेस जिनके बीच में एक फोर्स लग रहा था जब वो एक सर्टेन डिस्टेंस d से सेपरेटेड थे, एयर में रखा हुआ था। अब इसे उठा के एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखने के बाद उनके बीच के सेपरेशन को हाफ कर दिया गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट k है और उनके बीच के सेपरेशन को हाफ कर दिया गया, सेपरेशन मेड हाफ। जब सेपरेशन को हाफ कर दिया गया तो फिर अब जो उस पर नया फोर्स है वो कितना लगेगा, तो जो f मीडियम होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये f एयर है, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 हम अज्यूम कर लेते हैं चार्जेस को, और इसको लिख देते हैं d स्क्वायर, q1 q2 ये अजम्पशन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन m
epsilon r, that is relative permittivity or dielectric constant which is given as k, into q1 q2 by distance का स्क्वायर. अब डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, मतलब r/2 का स्क्वायर. सो इफेक्टिवली ये वैल्यू कितनी बनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर और d स्क्वायर, डिस्टेंस d था, d स्क्वायर. ये पूरी टर्म तो f ऑलरेडी है ही, तो फिर ये बन गया f, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, और d स्क्वायर खत्म हो गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया f, और फिर यहाँ से आया 4 बाय एप्सिलॉन r, यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मुझे दी हुई है ऑलरेडी k. सो आई कैन से दैट द नेट फोर्स नाउ विल बी 4f अपॉन k. इसमें बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, चार्जेस को डबल कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, डॉल, बहुत तरह की सिचुएशन आती है. तो यू जस्ट हैव टू अज्यूम द कंडीशन. मान लो कि Q1 Q2 चार्जेस थे, डी सेपरेशन था, हाफ करेंगे तो कितना होगा, 25% करेंगे तो कितना होगा, एटसेट्रा, एंड यू विल गेट द रिजल्ट. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर 4f अपॉन k. k की जो भी वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से निकाल सकते हो. मान लो k2 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ, तो अगर k2 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 to the 4, तो इफेक्टिवली 2f. परसेंटेज डिक्रीमेंट नहीं हुआ बल्कि फोर्स डबल हो गया. डबल हो गया मतलब 100% का इंक्रीज. सो इट्स लाइक दैट, यू कैन डील द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. ओके, मूविंग फर्दर. ओके, अगेन ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ. इन द सेम वे वी हैव वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. देखो कुछ नहीं होता है वेक्टर फॉर्म. जब भी कोई एक फोर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी एक डायरेक्शन होगी. हम उसकी डायरेक्शन को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही वेक्टर फॉर्म कहते हैं. दैट्स इट. अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से आता है तो आपको कुछ वेक्टर फॉर्म अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट सेज. सो इफ यू कंसीडर, लाइक आई विल गिव यू अ बेसिक एग्जांपल, कि अगर मान लो दो चार्जेस हैं. अब वो दो चार्जेस जो हम अभी ऐसे रख रहे थे कहीं पे भी Q1 Q2, इसकी जगह इन्होंने कह दिया कि दो चार्जेस उनके कुछ पोजीशन वेक्टर्स हैं. तो पोजीशन वेक्टर्स मतलब R1 पोजीशन पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और R2 पोजीशन पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2. दिस इज द सिचुएशन. अब ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच की पोजीशन है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा. डिस्टेंस निकालने के लिए लेट्स कैलकुलेट द वेक्टर फर्स्ट. तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा यहाँ पे, ये वेक्टर की लेंथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, या उल्टे साइड वाले वेक्टर की लेंथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा. मान लो ये डिस्टेंस और ये वेक्टर का नाम x है. तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं r1 प्लस x इज इक्वल्स टू नथिंग बट r2, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से r2 माइनस r1. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ये मेरे पास एक नया वेक्टर आ गया. इस वेक्टर को x कहा गया है, तो x का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनके बीच में डिस्टेंस होगा. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ x इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ये डिस्टेंस है. तो अब मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन पता है. अब जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगा रहा होगा. रिमेंबर, फोर्स लगाना और एक्सेलरेशन में फर्क होता है. आई विल कम ऑन दैट फर्दर. ग्रेविटेशन में शायद आपने पढ़ा होगा जितना फोर्स अर्थ आप पे लगाती है उतना ही फोर्स आप भी अर्थ पे लगाते हो, बट इफेक्टिवली आप जब उछलते हो तो अर्थ ऊपर नहीं आती है, आप नीचे चले जाते हो क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है. सो एक्सेलरेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, फोर्स सेम है. बेसिक सी बात है कि अगर मान लो कि एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट है और एक 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में सेम फोर्स लग रहा है. इमेजिन लाइक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन. तो जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो 10 किलो के ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है और 1 किलो के ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है. तो वो 10 किलो पे तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि फोर्स अपॉन मास. लेकिन वो 1 किलो पे जो मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस करेगा, मतलब 10 टाइम्स. तो मतलब मुझे लगेगा कि 1 किलो वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव कर रहा है और 10 kg वाला ऑब्जेक्ट बहुत कम मूव कर रहा है. फोर्स दोनों पे सेम है बट दोनों के मासेस डिफरेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन अलग अलग है. सो Q1 Q2 पे सेम फोर्स लग रहा होगा. इमेजिन कर लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, तो आई कैन से दैट Q2 पे जो फोर्स Q1 की वजह से लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, और Q1 पे जो Q2 की वजह से फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा. देखो, अंडरस्टैंड, दो चार्जेस हैं इस तरफ, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है. ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं. तो ये वाला जो चार्ज है ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला जो चार्ज है इधर जाने की कोशिश कर रहा है. यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मान लो, ओके शिट लॉस्ट, ओके जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल फोकस हियर ओनली, कि अगर अज्यूम करो कि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं और Q1 एंड Q2, F1 to F2. अब यहाँ पे ये क्या है कि इनके बीच का ये डिस्टेंस जो मैंने x माना था इन्होंने एक दूसरा नाम दे दिया R21. मुझे नहीं पता ये मुश्किल नाम क्यों रखते हैं इतने, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने एक नाम दिया यहाँ पे x
R21 जिसको मैं हम x कह के चल रहे थे, ये वाला वेक्टर है, इधर से लेकर के इधर की तरफ जा रहा है। नाउ ये जो मेरे पास सिचुएशन है, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसमें Q1 के ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा है और Q2 के ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे से रिपल्शन कर रहे हैं। Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है? Q2, और Q2 पे फोर्स कौन लगा रहा है? Q1। तो हमने इसको Q1 पे जो लगने वाला फोर्स है, इसको हमने नाम दे दिया F12, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है दो ही चार्जेस हों, और भी हो सकते हैं। F12, और सेम वे हमने इसको दूसरा फोर्स नाम दिया F21। नाउ अगर मैं F12 निकालूं, सिर्फ F12 निकाल रहा हूं मैं, तो ध्यान देना F12 ये होगा कितना? वेक्टोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टोरियल मतलब मुझे डायरेक्शन भी लिखनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मैग्नीट्यूड पता है मेरे को। और डिस्टेंस कितना था? तो x जो है मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड, इस डेफिनेशन के हिसाब से R21 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये एक नंबर है, अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं आई है। ये नंबर है यानी स्केलर है, ये भी स्केलर है, मतलब ऑल द थिंग्स स्टिल आर स्केलर। डायरेक्शन नहीं आई है। डायरेक्शन का मतलब मुझे अब यूनिट वेक्टर लिखना है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर 2 न्यूटन का एक फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 i कैप न्यूटन, क्योंकि x डायरेक्शन में लग रहा है और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मुझे पता होता है i कैप। बट यहाँ पे मुझे यूनिट वेक्टर, ये तो एक इस वियर्ड सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो ना तो x है ना y है ना z है, लेकिन ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में है ना। अगर मैं ये वाला वेक्टर अज्यूम करूं तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही लग रहा है ये वाला फोर्स, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वही इसका भी यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यही होगा। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, दैट्स इट। तो इस डायरेक्शन में मैंने जो वेक्टर माना था वो x है, तो x का यूनिट वेक्टर कितना होगा? x कैप। और अगर इनकी भाषा में कहें तो R21 कैप, इट इज एक्चुअली अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक, R21 कैप। और तो जो फोर्स हो गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 R12, यानी कि x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो यहाँ पे इन्होंने मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाया, नहीं मॉड भी लगाया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वेक्टर साइन हटा दिया, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये पूरी टर्म तो हो गई मैग्नीट्यूड। और R12 कैप यानी कि x कैप, ये हो गया फोर्स। ये मेरे पास जो रिजल्ट आया, दिस इज द होल रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर मैं लिखूं तो ये भी यही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सब कुछ यही है। डिस्टेंस भी इनफैक्ट वही है। आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेजर करो, जो यहाँ से यहाँ मेजर करो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस भी यही है, यानी कि मॉड x का होल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन इधर नहीं है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो कांट आई से दैट सिंपली -x कैप, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट ऑपोजिट वेक्टर, i कैप माइनस i कैप, j कैप माइनस j कैप। तो कांट आई सिंपली से दैट F21 इज नथिंग बट the whole term is nothing but F12, so negative of F12। इसी को हम नॉर्मली कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पे लगा रहा है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इसी को किताबी भाषा में या बुकिश लैंग्वेज में दे एक्सप्लेन इट लाइक R12 R21 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नथिंग लाइक दैट, यू सिंपली हैव टू इमेजिन दैट वेक्टर की लेंथ उसका डिस्टेंस होता है, मॉडुलस से रिप्रेजेंट करो, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर लगाना है, निकालना है, तो उसके आगे आप जस्ट कैप प्लेस कर दो, दैट्स इट, वो उसका यूनिट वेक्टर हो गया। फर्दर वो निकालते रहेंगे जो भी होगा जैसे भी होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। या कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट कूलम्स लॉ एक्सप्लेन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, F21 इज इक्वल्स टू -F12। मूविंग फर्दर, मल्टीपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सेम चीज। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 न्यूटन, 4 न्यूटन और 6 न्यूटन, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? सो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ये फोर्सेस लग कहाँ रहे हैं? क्या पता सारे एक डायरेक्शन में लग रहे हो, क्या पता 2 एक डायरेक्शन में लग रहे हो, एक उसके ऑपोजिट लग रहा हो, क्या पता वो 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हो। मतलब इस टेबल को या पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को, मान लो इस पेन को मैं आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ 2 न्यूटन से, और 2 न्यूटन से नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, तब मुझे पता है ना कि ये पेन इधर जाएगा, ना तो ये आगे जाएगा ना नीचे जाएगा, ये उनके बीच में जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस पेन पे मैं 2 न्यूटन के फोर्सेस, 2 फोर्सेस लगा रहा हूँ 2 न्यूटन के, आई एम अप्लाइंग 2 फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन ऑन दिस पर्टिकुलर पेन, वेयर विल इट गो? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वेयर एम आई अप्लाइंग द फोर्सेस। दैट इज व्हाई इन्हें वेक्टर्स कहा जाता है, यू नीड डायरेक्शन टू एक्सप्लेन द रिजल्ट। So if we have multiple forces or multiple charges, what we will do? Obviously we'll have to take the vector sum which we have discussed in grade 11. इसे कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये अलग अलग नाम रखते हैं ये लोग।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहने का मतलब कि अगर मेरे पास मल्टीपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो आप सबका इंडिविजुअल इफेक्ट निकालो और उनका वेक्टोरियल सम कर दो, जस्ट टेक द वेक्टर सम ऑफ एवरीथिंग। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक चार्ज दिया हुआ है Q3, 3 चार्जेस है मेरे पास Q1 Q2 एंड Q3। मुझे Q3 पे फोर्स निकालना है। सो Q3 पे फोर्स कौन लगा रहा होगा? Q1 लगा रहा होगा और Q2 लगा रहा होगा। Q2 का फोर्स निकालो, Q1 का फोर्स निकालो, इनसे जो भी फोर्सेस आ रहे होंगे उनका वेक्टर सम ले लो, दैट विल कम आउट टू बी एज द नेट फोर्स ऑन Q3। सेम वे अगर मुझे Q1 पे निकालना है तो Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है? Q3 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, दोनों का फोर्स निकालो Q1 के ऊपर, सम कर दो। अगेन सम मतलब डायरेक्ट एडिशन नहीं, मतलब वही चीज है कि इस पे 2 न्यूटन और 2 न्यूटन लग तो रहे हैं बट कहाँ लग रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो वेक्टर रिजल्ट निकालने का तरीका होता था आर रिजल्टेंट और एफ नेट इज नथिंग बट अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेक्टर्स फर्स्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर, तभी आप उसको ढंग से डील कर पाओगे। यहाँ पे जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो इसका मतलब होता है ये इनका वेक्टर एडिशन है, मैं इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ आई कैप होगा, जे कैप होगा, के कैप होगा, सेम वे यहाँ कुछ आई जे के होगा, यहाँ कुछ आई जे के होगा, तब इनके बीच में एडिशन होगा। या दूसरा तरीका है, अगर मुझे दोनों के मैग्नीट्यूड्स पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2yz कॉस थीटा, और ये मुझे देगा x का मैग्नीट्यूड, x की डायरेक्शन ये तब भी नहीं देगा, x का मैग्नीट्यूड, तब मेरे पास रिजल्ट आएगा। समझ सकते हो कि इस पे मान लो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? सो 2 न्यूटन इधर है, 2 न्यूटन नीचे है, तो इसके बीच में जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू कॉस, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है तो कॉस 90, इट वैनिशेस 448 2 रूट 2 न्यूटन, दैट इज रूट 8। सो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे वो इस तरफ आ रहा है, दैट इज 2 अंडर रूट 2 न्यूटन। मैंने यहाँ 2 और 2 को डायरेक्टली ऐड नहीं किया। सेम वही चीज किसी भी फोर्स के लिए वैलिड होगी, या इनफैक्ट फोर्स छोड़ो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप उन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, यू नीड टू अप्लाई द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, देन ओनली यू कैन डील विद देम। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। So the net force on a considered charge definition wise is given by the vectorial sum of all the forces acting on the charge. Obvious है क्योंकि force है, vector quantity है, you cannot add them without vectorial sum. Some general problem, general situation, यहाँ से आपको थोड़ा बेहतर आइडिया मिलेगा। Imagine like कि यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है 4Q, इनके बीच में एक डिस्टेंस है D, मुझे Q पे फोर्स निकालना है। तो Q दोनों पॉजिटिव है, तो Q पे जो फोर्स लग रहा होगा 4Q Q को पुश कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है, 4Q Q को पुश कर रहा है और फिर Q 4Q को पुश कर रहा है। तो अगर मुझे Q पे फोर्स निकालना है तो कितना होगा? इस तरफ होगा पहली चीज, क्योंकि Q को इस तरफ पुश मिल रहा है, और 4Q पे अगर मुझे फोर्स निकालना होगा तो 4Q का फोर्स इस तरफ होगा, क्योंकि 4Q को इस तरफ पुश मिल रहा है। कितना? पहले Q पे निकालते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस अज्यूम किया हमने D है, तो कितना होगा? 1/4 Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, दिस इज द फोर्स, जो भी हो वटेवर। और डायरेक्शन क्या है इसकी? इस तरफ। तो अगर मैं वेक्टोरियली लिख रहा हूँ और मान लो मैं इन जनरल इसे आई कैप कहता हूँ, इसे जे कैप कहता हूँ और बाहर की डायरेक्शन को के कैप कहता हूँ, तो ये माइनस आई कैप है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में लग रहा है। परफेक्ट, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। 4Q पे कितना फोर्स लग रहा होगा? इतना ही लगेगा, क्योंकि Q 4Q बदलने नहीं वाले हैं, डिस्टेंस सेम ही है, बस फर्क कितना होगा कि जो फोर्स है वो आई कैप डायरेक्शन में होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग चेंजेस। यहाँ तो सिर्फ 2 ही थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो, अनदर एग्जाम्पल, ये भी कई बार मिलता है, मान लो ये -Q 4Q होता, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है और कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, -Q 4Q हो तब भी आप Q 4Q ही लिखोगे, -Q -4Q हो तब भी आप Q 4Q लिखोगे, बस फर्क इतना पड़ेगा कि अब ये अट्रैक्ट करेंगे, सो नेचर अट्रैक्टिव होगा, मतलब -Q इस तरफ खींचेगा, सो फोर्स की डायरेक्शन प्लस आई कैप हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप चेंज कर दोगे। मान लो ये Q है, ये 2Q है, और ये इमेजिन लाइक -4Q है, लेट्स से, डिफरेंट केसेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री एंगल है, D इनके बीच का डिस्टेंस है, इमेजिन अलग अलग पे फोर्सेस निकालते हैं। पहले Q पे, सिर्फ डायरेक्शंस की बात करते हैं। Q पे Q को -4Q अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो Q पे -4Q एक फोर्स लगा रहा होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, लेट्स अज्यूम, और इस फोर्स को हम मान लेते हैं F1, इमेजिन।
और Q पे 2Q एक फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं, प्लस प्लस दोनों के बीच में पुश होगा तो Q उस तरफ जाएगा और Q और -4Q की वजह से वो इस तरफ आएगा। सो फिर इफेक्टिवली Q पे जो ये फोर्स लग रहा होगा उसको हम मान लेते हैं F2। मुझे इनके बीच में नेट रिजल्ट निकालना है कि ये कितना होगा। तो एक F1 है एक F2 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 60 है ये भी 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 120 डिग्री होगा। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आप पहले F1 की वैल्यू निकालो। F1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0, that is constant, let's assume it as k for now, into Q1 यानी कि -4Q की जगह हम लिखेंगे 4Q, जस्ट मैग्नीट्यूड, और Q2 यानी कि Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर d स्क्वायर, ये तो हो गया F1। F2 कितना हुआ, सो K इंटू 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। Q पे Q खुद फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब आपके ऊपर आपके दो दोस्त फोर्स लगा सकते हैं पुश करने के लिए, आप खुद अपने आप के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट पुश योर सेल्फ, your brain can, but that's a different scenario. F1 is this, F2 is this, मुझे नेट फोर्स निकालना है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है, मैं नेट रिजल्ट निकाल सकता हूँ, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। दिस इज द केस, सब में यही होगा। अब जब -4Q के बारे में बात करूँगा तो अब इस पे फोर्स अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ सेम थे, -4Q Q की तरफ अट्रैक्ट होगा इस तरफ, लेट्स से द फोर्स इज F3, और -4Q इस 2Q की तरफ भी अट्रैक्ट ही होगा, लेट्स से द फोर्स इज F4, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों। एंगल 60, यहाँ एंगल 120 था, टेल्स के बीच का एंगल होता है वेक्टर्स। सेम F3 लिखो F4 लिखो, F3 F1 के बराबर ही होगा, F4 1/4πε0 2Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। F3 F4 नेट रिजल्ट निकालना है, सॉल्व कर दो। सेम जब 2Q पे निकालेंगे तो 2Q को ये Q पुश करेगा और ये -4Q अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में एंगल फिर से हो जाएगा 120। ये वैल्यू निकालो ये वैल्यू निकालो, दोनों का वेक्टोरियल सम कर दो, सेम सिचुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें अज्यूम करते हैं, मान लो Q Q Q और यहाँ पे भी Q, लेट्स से सारे एक जैसे, नेचर अलग कर देते हैं, लेट्स से -Q मान लेते हैं इसको। अगर मुझे इस -Q पे फोर्स निकालना है, ये इस -Q को इधर अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स, ये इस -Q को इधर अट्रैक्ट करेगा। अगर ये मिड पॉइंट पे है तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, कोई लेना देना नहीं है। ये वाला Q इस -Q को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इफेक्टिवली 1 2 3, अगर ये मिड पॉइंट है इसका तो फिर ये 1 और 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, खत्म, सिर्फ 3 बचेगा, इस तरफ फोर्स है जो भी है निकल जाएगा, क्योंकि Q -Q को अट्रैक्ट करेगा। जब इसकी बात करता हूँ मैं, ये -Q अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स, ये +Q पुश करेगा दूसरा फोर्स, ये +Q भी पुश करेगा तीसरा फोर्स। सेम इस पे निकालो, तीनों उस चार्ज को छोड़ के बाकी सारे चार्ज का इफेक्ट निकालो और उनका पिक्टोरियल सम कर दो। विल डिस्कस सम लाइक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अ डिफरेंट क्लास। यहाँ पे चेक करो, फिर से वही चीज़ है, ये वाला फोर्स चार्ज लेते हैं, मान लो Q है, सारे Q हैं, तो इस Q पे ये भी Q है ये भी Q है, सारे पॉजिटिव नेचर के। ये Q इस Q को इस तरफ पुश कर रहा होगा, ये Q ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, और ये वाला Q इस तरफ पुश कर रहा होगा। अब मुझे नेट रिजल्ट निकालना है। एक और चीज़ ध्यान रखना वेक्टर रिजल्ट निकालने में, या इनफैक्ट कोई भी रिजल्ट निकालने में, मान लो मैं आपको 3 नंबर्स देता हूँ, 97, 7 और 3, इन तीनों को आपको ऐड करना है। So, जो method normally we use, what do? We add 97 plus 3, that is 100, 100 plus 7 is 107. We could also use 97 plus 7 plus 3. 97 plus 7 is 104 and plus 3, 107. Same result आएगा. But we are more comfortable with hundreds. So that is why हम 97 को पहले 3 से ऐड करते हैं, 100 हो गया, और फिर उसके बाद 7 से जोड़ देते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलो, मान लो 997 plus 14 plus 3. So 997 plus 3, 1000, 1000 plus 14, 1014. So the better is कि हम पहले उन दो को रिजल्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल होता है कि वी कैन हैंडल बाइनरी सिचुएशंस, मतलब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, एक साथ आप सिर्फ दो चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। तो इवन कैलकुलेटर जब आप ऐड करते हो तो उसका सम दिखाता रहता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी। सो पहले वो x प्लस वाई को ऐड करेगा, फिर उसके सम को z से ऐड करेगा, फिर उसके सम को p से ऐड करेगा। तो सिचुएशन हमेशा बाइनरी होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंडीशन ऐसी हो जाए
कि पहले इन दोनों का रिजल्ट आएगा, फिर इससे जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों से बनेगा, फिर इससे जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों से बनेगा, तब आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो बाइनरी हमेशा दो में डील होता है। कौन से दो पहले लिए जाएं जिससे आने वाला रिजल्ट अगले से ऐड करना आसान हो जाए, वो हमारा माइंड कैलकुलेशन होता है और वो चीज़ों को आसान बनाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी से सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा बट डिफिकल्ट हो जाएगा। इमेजिन करते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये तीन फोर्सेज है, मैं फोर्सेज के नाम दे देता हूँ एक्स वाई जेड। जो एक्स वाला फोर्स है और जो जेड वाला फोर्स है, ये इसकी वजह से जेड वाला फोर्स जो है यहाँ पे, ये जो फोर्स है ये जेड वाला है, और ये वाला जो फोर्स है ये एक्स वाला है, और ये वाला फोर्स वाई वाला है। अब सोचो अगर मैं पहले वाई और एक्स का रिजल्ट निकालूं, क्योंकि तीन वेक्टर्स हैं तो पहले दो का रिजल्ट निकलेगा फिर वो तीसरे से ऐड होगा। जब मैं वाई और एक्स का रिजल्ट निकालूंगा तो वाई और एक्स का रिजल्ट कहीं इधर आएगा, ये दो फोर्सेज हैं इसको ऐसे खींच रहे हैं तो उनका रिजल्ट कहीं यहाँ आएगा। और जब इसका नया रिजल्ट यहाँ आएगा तो इसका मुझे जब z के साथ सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो उसके लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल निकालना पड़ेगा मुझे, ये कैलकुलेशन बढ़ाएगा। दूसरा तरीका ये है कि z और x को जब मैं सॉल्व करूँगा ना तो वो इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में ये ऑलरेडी है। तो जैसे ही वो उस डायरेक्शन में आ जाएगा तो अब उसको और इसको ऐड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 2 Newton, 2 Newton, 4 Newton. But 2 Newton, 2 Newton, you will have to solve because you need the angle for that. So that is why हम यहाँ पे पहले x और z को सॉल्व करेंगे, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा उसको y के साथ डील करेंगे। कर हम कैसे भी सकते हैं, x और y को भी सॉल्व करके z के साथ रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसके अंदर बढ़ जाएगी, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, रिजल्ट सेम आएगा। Anyway, so these were some basic problems based on Coulomb's law. So what exactly we studied today, what exactly Coulomb's law is, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उतना कम हो जाएगा, जितने चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम करोगे फोर्स उतना कम हो जाएगा। चार्जेस का साइन मैटर नहीं करता मैग्नीट्यूड निकालने में, सिर्फ साइन मैटर करता है डायरेक्शन निकालने में और वेक्टर को पॉइंट आउट करने में। वेक्टर्स यानी फोर्सेस को हम वेक्टोरियली ही सम अप कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे डायरेक्टली सम अप नहीं किया जा सकता। तो आप 2 न्यूटन को 4 न्यूटन ऐड नहीं कर सकते अनलेस आपको पता ना हो कि वो सेम डायरेक्शन में है कि डिफरेंट डायरेक्शन में है कि किसी एंगल पे है। सो दिस वाज बेसिकली द ओवरव्यू कि कूलम्स लॉ है क्या और उसके साथ डील कैसे करते हैं। विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड द चैप्टर एंड्स फर्दर। Anyways, if you think that this particular course can help anybody, please share it. Thanks for watching. Have a good day.